Hey guys, thank you so much for showing so much love in my previous video. My first video. The video was really crappy. I did not have any microphones, so there were a lot of noises. You guys showed a lot of appreciation for the video. There were a lot of great comments and a few bad ones as well. And there were few questions as well from you guys. So today I'm going to answer all of these questions. We are going to take a long drive today and we'll answer all of your questions. देखो फाइनली भाई ने माइक खरीद लिया है. सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो में अच्छा ऑडियो आने वाला है. थैंक यू. चलो शुरू करते हैं. So this is Horsley Hills. This is about 160 kilometers from Bangalore, and it's awesome. It's beautiful. As you can see in the footage, we were not able to see anything on the road because of the fog. Too much fog. Yeah, too much fog. Correct. So that brings me to the situation of headlights. We will talk about them once we go through the video. But first, I want to say thanks to few guys. I'm going to put the comments right here. They appreciated the video for my honest comments on the car. So I really appreciate you guys for watching that video. I also want to highlight the criticisms also. Let me read a few. The good comments are always good, great. But the bad comments are important, right? There was one comment from Anish. He said just 1 year and 10k kilometers does not define a long-term review. Yeah, of course, I understand, Anish. It's not a long-term review, but do you want me to wait till 1 lakh kilometers and then give you a review? would you wait for another 5 to 10 years? I mean, I'm not going to drive this car and every day throughout the India, right? It's just going to office, coming back, few holidays here and there. So, but thank you very much for the comment. The next one. You are not rigid at your decision. Disliked. Yeah, it was my first video, and also no car is perfect. I cannot say that okay, this is the best car in India. I cannot say that. Simply cannot say that. This is a very, very good car, but this has a lot of issues. There are a lot of bad cars also, which has a lot of good features also. Apart from WagonR, almost all the cars are good, by the way. Right. WagonR also good. Not bad. Really? Yeah. नेक्स्ट, विंडो बंद करके वीडियो बनाते सर. हाँ यार, विंडो बंद ही था बाय द वे, बट प्रॉब्लम ये था कि हाईवे में था और नॉइज इतना आ रहा था क्योंकि फोन के माइक्रोफोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था. माइक खरीद लिया है, प्लीज सब्सक्राइब कर देना अभी. हाँ, 2-3 महीना हो गया, बट थैंक यू. भाई, I didn't feel any sound system issues till date. There are no issues with sound systems at all. Sound system बहुत अच्छा है, but मैं पहले टाटा टियागो चलाता था जिसमें हारमन कार्डन का सिस्टम आता था, and that sound system is just simply better than this. That's it. इसमें सबवूफर आता है पीछे, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है. लॉन्ग ड्राइव पे हमेशा हम चालू रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन वो हारमन कार्डन ने सेट कर लिया था, बस उतना ही. राइट. Thank you so much for all these criticisms. I'm going to improve all my videos going forward. Please subscribe and also like this video. Leave your comments so that I can include them in the future videos. Headlights के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैं कुछ फुटेज डालूंगा. ये फुटेजेस में देख सकते हो कि सामने से कुछ दिखता नहीं है फॉग की वजह से. ऑफ कोर्स इस गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है कि, लेकिन हेडलाइट का जो पोजीशन है वो इतना नीचे है, तो इट रियली डजंट मैटर ऑल्सो. बट at night on highway जहाँ पे street lamps नहीं होते, these LED lights are very shiny and good looking, but जो halogen bulb का जो power है ना रोड पे, जो दूर से ही गड्ढे दिख जाते हैं, वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग रहता है इस गाड़ी में. नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस थे पुराने वीडियो में, मैं कुछ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है वर्टुस GT के साथ और स्लाविया के साथ.
यार ड्राइवेबिलिटी के मामले में या आई कैनॉट कंपेयर वर्ना विद दैट, तो दोज गाइज आर लाइक जर्मन इंजीनियरिंग इज लाइक ऑन अनदर लेवल. बट Right. मैंने स्लाविया चलाया था, प्राइमरीली वही गाड़ी चूज करने वाले थे हम लोग. वी इवन बुक्ड इट ऑल्सो, ऑलमोस्ट We बुक्ड इट. booked almost. कुशाक और स्लाविया में कंपैरिजन था और हम स्लाविया ऑलमोस्ट बुक कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं ना जो यार दिमागी संतुलन बिगाड़ देता है. No, no, जो features थे ना, I mean, वही फीचर्स. वरना सो वरना में बेसिकली features ये ज्यादा जो हीटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स तो चलो ठीक है, अच्छा है, हीटेड सीट्स भी है, और जो प्रीमियम क्वालिटी है ना इंटीरियर का, वो क्वालिटी देखने से ही समझ में आता है. आई मीन इट फील्स प्रीमियम. थे. Slavia कुशाक में I think बहुत कम features थे I think. फीचर्स कम नहीं थे, लेकिन हाँ, आई मीन Compared to कंपैरेटिवली Verna. वर्ना, कंपेयर टू वर्ना, या इट वाज लेस. एंड ऑल्सो हाँ Interior भी बहुत basic था. हाँ, इंटीरियर में रैटलिंग नॉइज आ रहा था जब चला रहे थे हम लोग Right. उसका, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा था. ओके, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें एक क्वेश्चन था इस पर, ग्राउंड क्लियरेंस का. बेसिकली ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मैं ये बोलना चाहता हूँ, I'll put few footages here. About 15-20 kilometers road. I'm not going to say off-roading, but roads इतने खराब थे और इतने Very बड़े बड़े bad. गड्ढे थे, Yeah, बहुत बड़े-बड़े थे. इस गाड़ी को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन आई ड्रोव थ्रू एवरीथिंग, इट वाज Right. गुड. थोड़ा सा केयरफुल होना था कि स्लो जाना है, स्पीड ब्रेकर बड़े है तो थोड़ा स्लो करके निकालना है बस, लेकिन कहीं पे टच नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच. Thank you. I am thinking of buying Verna. I live in Mumbai. I like to push my car on highway, hence more inclined towards turbo DCT. However, my daily use will be in the city, hence IVT seems more practical. I like all black interiors and alloys on turbo. What would you suggest me? Yeah, if you are thinking about mileage and city driving primarily, I would say go with the IVT version. This turbo variant, I mean, it will give you a good mileage on highway. I mean, I've got like 18, 19 on the way here. But in city, if you go for automatic with IVT, regular transmission, it would be good. You can at least expect 10 to 11 in city. On highway, I heard the turbo version gives more mileage. Should we go to Creta 2024 or Verna 2024? यार क्रेटा मस्त है, क्रेटा ले लो. अभी नया वाला जो है ना वो क्रेटा With all features. सारे फीचर्स है, लेकिन आई थिंक कुछ कुछ मामले में जैसे कि हीटेड सीट्स मुझे नहीं पता आते कि नहीं यार, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट इट्स द सेम इंजन, सो यू विल गेट द सेम फीचर्स, सेम एवरीथिंग, एंड ऑल्सो बेटर ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल्सो बेटर रोड प्रेजेंस, आई वुड से. राइट, व्हाट वुड यू गो फॉर, क्रेटा और Creta. वर्ना? Creta. नेक्स्ट, For Verna and Creta, if you give me two options, right? Choose one option. कौन सा लेना है, वर्ना लेना है या क्रेटा लेना है? Creta. Because sunroof बहुत बड़ा है. Creta. I'll also choose Creta by the way. 360 कैमरा, यार बहुत मिस करता हूँ ये 360 कैमरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं. वरना टर्बो इंजन इज नोन फॉर इट्स पावर, लेकिन पावर के बारे में कुछ बताया ही नहीं यार. पावर तो मस्त है, Right. 253 Nm टॉर्क बहुत अच्छा है. अभी जो ये अपहिल क्लाइंब करके आना पड़ा, एनी टाइम आई गो फॉर अपहिल क्लाइंब, I don't even feel like the car is feeling anything. It just goes. There is no body roll in. बॉडी रोल बहुत ही मिनिमल है, एकदम पता ही नहीं चलता. हिल्स में क्लाइंब करो या फिर हाईवे में ड्राइव करो, Right. बॉडी रोल नहीं है. बाकी की चीज़ें घर पे जाके बात करता हूँ, ठीक है. तो और एक क्वेश्चन आया नया, इसमें कार्तिक ने पूछा कि नहीं बनाया और एक वीडियो इंटीरियर के बारे में, 4 मंथ्स हो गए, तो चलो इंटीरियर देख लेते हैं. बस ये तो रिक्वेस्ट सेंसर हमारे खाली ड्राइवर साइड में आता है, पैसेंजर साइड में नहीं आता है. कॉस्ट कटिंग और क्या. Now, if you are going for the top end, you would get all these bells and whistles, basically all start, stop, button,
ventilated heated seats, the electric parking brake, the auto hold feature, and all your ventilation controls are right here. It's actually pretty good. यहाँ पे टच का कोई मैटर नहीं है, so it's a physical button which I always appreciate. अभी यहाँ पे 3 ऑप्शंस है कनेक्टिविटी का. ये तो USB-C है जो मैं रेयरली यूज़ करता हूँ क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है वो USB-A के थ्रू कनेक्ट होता है. सो मैं इसी से कनेक्ट करता हूँ. सो दिस इज़ द वायर आई यूज़. अमेज़ॉन से यूज़ किया था. हर कोई केबल काम नहीं करता. प्राइमरीली आपके पास अगर आईफोन नए वाले जनरेशन वाले है सो उनका जो केबल है वो कभी कभी डिस्कनेक्ट होता रहता है. सो आई वुड सजेस्ट कि वायर्स अपग्रेड कर लेना. ये वाला लिंक मैं छोड़ दूंगा. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता. सिंस वायर्ड कनेक्टिविटी है सो यू हैव टू एडजस्ट विद द वायर. लेकिन और एक चीज़ देखा है मैंने, आई मीन जो वायरलेस कनेक्टिविटी है होता है कार्स में वो मैंने बहुत बार देखा है कि डिस्कनेक्ट होता रहता है. बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया. ये चीज़ वायर्ड कनेक्टिविटी में होता नहीं है, विच इज़ प्रीटी गुड. नाउ सो USB-C USB-A इसी के थ्रू मैं दोनों डिवाइसेस और आई मीन आइदर एंड्रॉयड और iOS कनेक्ट करता हूँ. ये बीच वाला मैं ऐसे रखा हूँ क्योंकि इसको मैं डैश कैम से कनेक्ट करके रखा हूँ. डैश कैम बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना. मैंने ये Xiaomi का कुछ आता है 70 mAh, लिंक छोड़ दूंगा. वो इसका फ्रंट और रियर दोनों डाल के रखा है. अभी राइट साइड में तुम्हारे दरवाजे में ही सारे कंट्रोल्स है विंडोज़ के. ये ड्राइवर साइड विंडो ही बस ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होता है. बाकी वाले तुमको मैनुअली अप एंड डाउन करना पड़ेगा. देखो अभी जो अगली बात है ना वो है इस गाड़ी का स्पेस. इफ़ यू कैन सी, आफ्टर सीइंग मेनी हैचबैक्स एंड मेनी SUVs आई हैव रियलाइज दैट जो अंदर का जो इंटीरियर का जो स्पेस है ना वो अगर आपको ज़रूरी है, इफ़ यू नीड दैट स्पेस फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सेल्फ, आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कार फॉर दैट. यहाँ पे मैंने 5 लोगों के साथ ड्राइव किया, 6 लोगों के साथ भी एडजस्ट किया, बट किसी को ज़्यादा क्रैम्प फील नहीं हुआ. इट्स बिन 1.5 years विद दिस कार. अभी तक मैंने इस गाड़ी में कुछ भी अपग्रेड नहीं किया. देयर आर नो एक्सेसरीज दैट आई हैव एडेड. व्हाट आई पेड इनिशियली व्हेन आई बॉट द कार, दैट्स स्टिल प्रीटी मच इट. बट हाँ, कुछ एक्सेसरीज मैंने डाला है क्योंकि वो ज़रूरी था. जैसे कि इस गाड़ी में सनग्लास होल्डर नहीं आता, सो आई पुट दिस 2 सनग्लास होल्डर्स. एंड देन ये जो सेंटर आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट का जो विड्थ था वो थोड़ा सा कम था दोनों के लिए, ड्राइवर और पैसेंजर साइड दोनों के लिए. सो आई हैव बॉट दिस एडिशनल एक्सेसरी. इट कॉस्ट प्रीटी लेस बट it adds a very comfortable addition to the center armrest. बाकी ये 1.5 साल में गाड़ी में कोई इंटीरियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई रैटलिंग नॉइज़ नहीं है, कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट देर इज़ वन साउंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड रेप्लिकेट दैट फॉर यू. एक साउंड आता है जब ड्राइवर सीट में बैठे हो तब समझ में आता है. सो लेट मी टर्न दैट ऑन एंड शो यू. सो अगर मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ, मैं माइक को यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि ये जो साउंड है ये इस डैशबोर्ड से आता है. तो इसमें अगर मैं AC ऑन करता हूँ और लेट्स से इसका टेम्परेचर में बढ़ा देता हूँ तो एक साउंड आएगा. तो ये जो साउंड है ये कभी कभी आता रहता है. ये कभी कभी गियर शिफ्ट करने के टाइम पे भी आता है, कभी कभी टेम्परेचर ऑन कर ज़्यादा करने से भी आता है. सो मैंने हुंडई के साथ बात किया था एंड दे सेड इट्स परफेक्टली नॉर्मल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस. दिस हैपेंस टू मोस्ट ऑफ देयर कार्स बेसिकली. ओके, सो बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो वैनिटी मिरर आ जाता है कवर के साथ, नो लाइट्स. यहाँ पे भी वैनिटी मिरर आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे कोई कवर भी नहीं है, कोई लाइट भी नहीं है.
सनरूफ अभी भी एक टच में ओपन होता है, 1.5 साल हो गए, कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक टच से ओपन, फिर से टच करोगे तो एक्सटेंड हो जाएंगे थोड़ा। अगेन इट क्लोजेस विथ वन टच एज वेल। अभी ये IRVM ऑटो डे एंड नाइट है, सो इट्स प्रीटी गुड एट नाइट। आई मीन कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन it matters a lot at night when you're driving on the highway, when there is a car behind you. And in India, as you know, 90% people, they drive with high beam all the time, so this is very helpful. यहाँ पे आपको ये SOS का, टो का और ब्लू लिंक का ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी यहाँ के लाइट्स सारे LEDs हैं, मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया इनमें। आई हैड अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट दिस इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया, हमेशा हैंडल यूज़ करता था। सो मेरे अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क, इज़ इट गोइंग टू बी इफेक्टिव। सो मैंने जब यूज़ करना शुरू किया इसको, आई गॉट यूज टू इट प्रिटी क्विकली। सो यू होल्ड इट and it's just going to act as your typical handbrake. But let's say if you are speeding and then you hold it and you keep holding it, and it's going to give you a beep notification, and then it's going to start drifting as well. So don't try to play with it, and avoid using it while speeding basically. बाकी ग्लव बॉक्स चिल्ड है, कभी यूज़ नहीं किया, ये मुझे बेकार लगता है। ग्लव बॉक्स चिल करके करोगे भी क्या। सो दैट्स प्रीटी मच इट। ब्लू लिंक के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स मुझे शेयर करना है, विच मैंने देखा है कि बहुत सारे हुंडे एड्स में ये एक प्राइमरी सेलिंग पॉइंट बोल के दिखाते हैं वो लोग, कि आप मोबाइल से आपके एप्लीकेशन के थ्रू आपका कार एडजस्ट मैनेज कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। बट देर इज अ बिट ऑफ अ सैड रियलिटी टू इट, एंड आई विल शो इट टू यू व्हाई। अभी थोड़ा खाना बनाते बनाते ब्लू लिंक के बारे में बोल देता हूँ। सो ब्लू लिंक मैं प्राइमरीली आईफोन में यूज करता हूँ, लेकिन कभी कभी एंड्रॉयड में भी यूज करता हूँ, एंड द रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट प्रीटी मच द सेम। आईफोन में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है आई फील, बट एंड्रॉयड में उतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, बट इट वर्क्स प्रीटी मच द सेम। बट एज यू कैन सी, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर राइट हियर इन द होम स्क्रीन। In the first screen itself, you will see basically कितना पेट्रोल है, कितना देर तक empty हो जाएगा, is it the status, is it connected or disconnected. This is something I need to appreciate. It is never disconnected. It is always connected. It's pretty good. If I click on status, you would get a even detailed information about the status of your car. So range कितना बचा है, engine lock status क्या है, अभी locked है, off है, एसी का हीटिंग स्टेटस क्या है, ऑफ है, सब कुछ ऑफ है। अदर्स में जैसे कि बूट ओपन है या डोर ओपन है या बॉनेट ओपन है, ऑल ऑफ दिस डिटेल्स यू कैन गेट इनटू ईच सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन डिटेल्स बेसिकली। व्हीकल मैनेजमेंट, ये जो है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि कभी कभी ये जो फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स है इसमें थोड़ा थोड़ा गलत चीजें इंफॉर्मेशन दिखाता है, एबनॉर्मल्स दिखाता है कभी कभी। सो आई डिड, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इंजन ऑयल एबनॉर्मल, ऑयल फिल्टर एबनॉर्मल। सो मैंने पूछा था हुंडे से कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। सो उन्होंने बोला कि दे हैव टू रीसेट इट व्हाइल डूइंग द सर्विस। सो सेकंड सर्विस के टाइम पे, अभी तक 2 सर्विस किया, सेकंड सर्विस के टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किया। सो इट स्टिल शोज एबनॉर्मल, बट everything is normal. So that's kind of shady, I would say. Next comes in the remote, and that's the worst section of this app. अभी यहाँ पे मैं रिमोट डाल के कुछ कुछ चीजें करूंगा, जैसे कि मैं I'll try to turn on the engine, I'll lock the car, I'll unlock the car. So मैं कैमरा को यहाँ पे रखूंगा, I'll put the microphone right here, and I'll go a little far and I'll turn on the engine. I'll put a timer so that you can understand how long does it take usually. If it does work, it will take a lot of time, and most of the time it doesn't work. So I'm hitting start engine.
See, it worked, but it takes a little time. But sometimes it doesn't, and I'll share the screenshot right here when it doesn't work. I would say about 50-50 chances are there it is not going to work. So in a perfect world, it works almost all the time. And then I would say when the camera is not running and when I'm not making a video, it doesn't work like 50% of the time. Okay, so this would be the last video that I'm shooting in this year. Thank you so much for watching my videos. मैंने चैनल स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त के महीने में, and within few months I have 500 subscribers. I know it's not a lot, but मेरे लिए काफी है. Please leave your comments in the comment section below. What you want to see, what you want to watch in 2025, what are the cars that are in your focus in 2025. It's really difficult to get people to share their opinion on the cars, but I'll definitely try and get more people to share their reviews about their cars. So thank you again, and I wish you a very happy new year.